کل سے لے کے آج تک پاکستان جو ایک ٹریجڈی سے گزرا ہے اور ابھی بھی گزر رہا ہے. لاہور کا بلاسٹ ہوا, غیر جو ہمارے پاس سرکاری اعداد و شمار آئے 60 سے اوپر لوگ جو اس میں شہید ہوئے, لیکن غیر سرکاری اعداد جو ہے شاید اس سے زیادہ بڑھ جائیں. ان تمام معاملات پہ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ فوج نے جو ہے وہ آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے پنجاب کے اندر, اور یہ آپریشن جو ہے اس میں پاکستان کے سول ادارے مثلاً آئی بی, مثلاً پاکستان کی پنجاب کی پولیس یہ شامل نہیں ہے جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں. اس آپریشن کے اندر ملٹری انٹیلیجنس, آئی ایس آئی, رینجرز اور پاکستانی فوج شامل ہے. یہ اعلان بھی جو ہے حکومت کی طرف سے نہیں آیا, آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا, باجوہ صاحب کی طرف سے آیا, پہلے رات 12 بجے کی میٹنگ کا آیا چیف آف آرمی اسٹاف کی, اس کے بعد صبح جن جن علاقوں میں پنجاب کے خاص طور ساؤتھ پنجاب اور اس میں فیصل آباد وغیرہ بھی شامل ہے یہاں آپریشن کیا گیا ہے, اس کی تفصیلات سامنے آئی. میرے سامنے ڈان اخبار کی ایک رپورٹ ہے, آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں, 14 جنوری 2016 کی. اس میں یہ بتایا ہے اس رپورٹ کے اندر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ایز ویل ایز گورنمنٹ کی سوچ, یہ آج کے لیے بڑی ریلیونٹ ہے یہ بات بتانی. تجزیہ یہ کرتا ہے یہ رپورٹ جو ہے کہ حکومتی جماعت سوچ رہی ہے کہ سندھ طرز کا رینجرز آپریشن پنجاب میں ہونا چاہیے یا نہیں, جبکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی اسیسمنٹ میں کہا ہے کہ پنجاب میں رینجرز آپریشن ضروری ہو گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ پنجاب پولیس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے, اس لیے رینجرز کا آپریشن ضرور ہونا چاہیے. مگر پنجاب حکومت کا موقف ہے کہ وہ ایلیٹ فورس کے ذریعے اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے اگر فوج اس کو سپورٹ دے لاجسٹکلی. پرائم منسٹر کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ میں فوج کی طرف تجویز دی گئی کہ حکومت چاہے تو رینجرز پنجاب میں آپریشن شروع کر سکتی ہے, مگر پنجاب حکومت کے قریب ذرائع کہنا ہے کہ ایلیٹ فورس یہ کام کرے گی, کیونکہ اگر رینجرز کو طلب کیا گیا تو اس سے حکومت کی نااہلی ثابت ہو جائے گی اور سامنے آ جائے گی. سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یقین ہے کہ نیشنل سیکورٹی پلان پوری طرح عمل درآمد کرنا ہے تو پنجاب میں رینجر آپریشن ضروری ہے. سوال آج یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ جنوری میں بات مان لی جاتی ہے, آپریشن شروع ہو جاتا, تو شاید آج یہ جو سب کچھ دیکھنا پڑا ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ دیکھنا نہ پڑتا اور یہ 60 سے زیادہ لوگ جو ہے شہید نہ ہوتے. ایک ضروری اصلاح جو ہے چیز کو میں کنفرم بھی کر دوں یا کریکٹ کر دوں. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے اس ٹرانسمیشن میں ایک خبر کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ خبر گردش کر رہی تھی مختلف ذرائع سے کہ شاید پرائم منسٹر نے کل اسلام آباد میں ایسی کوئی میٹنگ ہی نہیں کی جس کی پریس ریلیز پرائم منسٹر ہاؤس سے شائع کی گئی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے طلال چودھری صاحب نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ پرائم منسٹر نے ایسی میٹنگ لیڈ کی تھی, ہیڈ کی تھی. تو میرا فرض ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ وہ خبر جو ہے وہ اس لحاظ سے غلط تھی اور طلال چودھری صاحب کا موقف جو ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, اب واپس آتے ہیں اور پنجاب آپریشن کے اوپر اب حکومتی پالیسی کیا ہے, حکومت کا کیا موقف ہے اور اپوزیشن کیا سوچتی ہے, اور یہ بتا دیں گے اب سے کچھ دیر بعد پرائم منسٹر کون سے خطاب کریں گے, یہیں سے آپ کو لائیو سنوائیں گے. ایک کوئک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ویورز سلام جائد بلوچ صاحب ایم کیو ہمارے ساتھ موجود, ڈاکٹر جبار خان ایکسپرٹ انٹرنیشنل ٹیررزم کے ہمارے ساتھ ہیں, اور دانیال عزیز صاحب نے کمٹ کیا ہے پروگرام میں آنے کے لیے. علی محمد خان صاحب, پنجاب میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور کن گراؤنڈز پہ, اور کیا حکومت نے صحیح فیصلہ کیا ہے اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. دیکھیں کہیں بھی جو بھی جتنے بھی آپریشن ہیں جو پنجاب میں ہونے والا ہے یا جو سندھ میں رینجرز کا ہوا یا جو مختلف ایجنسیز میں ہیں, یہ سارے آپریشن طرف اعظم کا حصہ ہی ہے اور اس پہ اس کو سپورٹ تو پورے پارلیمان نے دی ہے. اب یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ کہاں کہاں پہ کون کون سا آپریشن ہونا چاہیے. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے کامران شاہد صاحب, جی یہ تو ہمارے جو نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا اس کا ایک حصہ ہے کہ پنجاب میں اگر ضرورت پڑی تو وہاں بھی ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پختونخوا کے جو ہمارے منسٹر ہیں شاہ فرمان, ان کا بھی ابھی ایک فکر چلی ہے کہ اگر پختونخوا میں ضرورت ہو تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. دیکھیں پاکستان کی اسٹیٹ کا حق ہے اپنا جو 796096 اسکوائر کلومیٹر ہے اس کے اندر قانون کی رشت قائم ہو. اس کے لیے جہاں بھی آپ کو آرمی کی اور رینجرز کی ضرورت ہے وہ آپ نے کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی سرپرستی میں پارلیمان نے بنایا تھا. رائٹ. سلام مجاہد بلوچ صاحب, تو آپ خوش ہیں, آپ کہتے تھے کہ جی صرف کراچی ہی میں آپریشن ہو رہا ہے, اب تو پنجاب میں بھی آپریشن گورنمنٹ نے شروع کر دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کامران شاہد صاحب, آپ کا اور مہمانان کا, ویورز کا, سب کو السلام علیکم.
कल का जो साना है इनका अलमनाक साना है और उसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से भी और एमक्यूएम की जानिब से, और एमक्यूएम का एक एक कारकुन, एक एक वर्कर, एक एक सपोर्टर और पूरी पाकिस्तानी कौम लवाहक इनके साथ है, और जो शहीद हो गए उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। देखें कामरान शाहिद साहब, खुशी की या नाराज़गी की बात नहीं है, जो हक़ाइक़ के उस पर बात कर रहे थे हमेशा से, और कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने और एमक्यूएम ने तो काफ़ी सालों से इस बात की गम्माज़ी कर दी थी, लेकिन उनकी बातों को मजाक में उड़ा लिया जा रहा था। और मुझे तो एक बात का आज बड़ी खुशी भी है कि चलें, जब लाहौर में ये साना हुआ तो नवाज शरीफ साहब ऑन फ्रंट पर आए और उनको याद आ गया कि ये मेरे बहनें हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं। लेकिन जब पठानकोट के साने के बाद साना 4 यूनिवर्सिटी हुआ था तो ना ही नवाज शरीफ साहब ने दौरा कैंसिल किया, ना शहबाज शरीफ के, और चौधरी निसार तो एक दफ़ा फिर जिस तरह आज गायब है स्क्रीन से, उस वक्त भी गायब हो गए। तो जब पंजाब की बात होती रही, पंजाब में जो है दहशत गर्दों के स्लीपर सेल्स हैं, खास करके जनूबी पंजाब में, और जो खुदकश धमाका जिसने किया यहाँ पर, जिस शख्स ने, उसकी जो शनाख्त आई है वो भी जनूबी पंजाब का रहने वाला है। इसलिए तो हम कह रहे थे कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, सख्त ऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन एक दफ़ा फिर क्रेडिट गोज़ टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने हुकूमत की मंशा ना होने के बावजूद भी कल ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। ये इसी तरह ज़रबे अज़ब जिस तरह से शुरू हुआ था, 4 दिन बाद हुकूमत ने उसको ऑन किया, कल ये ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। मुल्तान से और दीगर इलाकों से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और आज जो है नवाज शरीफ साहब इसको ऑन कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि क्यों, अगर रॉ के एजेंट का अगर हम ये गिरफ्तारी का ये एक रद्द अमल इसको कह लें तो इसमें नुकसान किसका हुआ? मासूम औरतों का, मासूम बच्चों का। पाकिस्तानी थे, ये पाकिस्तानी कौम के बच्चे हैं और माएँ बहनें थी और लोग थे। तो मैं ये कहता हूं कि वंस फॉर ऑल अब इस महीने को खत्म होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द बोर्ड। और इस ऑपरेशन की ना सिर्फ कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई हिमायत करते हैं बल्कि पूरी एमक्यूएम हिमायत करती है और फोर्सेस के साथ खड़ी है, और पूरे पाकिस्तान में अब ये वक्त आ गया है कि दहशतगर्दों, दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। राइट दानियाल साहब, 2 सवाल है आपसे। एक तो ये कि ये ऑपरेशन अगर पहले शुरू हो जाता रेंजर्स का, फौज का, तो शायद लाहौर का ये वाकया पेश ना आता है। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, और इसमें जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कि सीएम पंजाब जो थे या नवाज शरीफ साहब वो रिलक्टेंट थे, वो चाहते नहीं थे कि रेंजर्स सिंध की तरह पंजाब के अंदर आए या कराची की तरह। और दूसरा ये भी दे दीजिए जवाब, जिस तरह सुलेमान मुजाहिद बलोच साहब भी कह रहे हैं और सारे कह रहे हैं कि बेसिकली आर्मी चीफ ने डिसाइड किया है, प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड नहीं किया ये ऑपरेशन, जिस तरह ज़रबे अज़ब डिसाइड नहीं किया था उन्होंने। ये दोनों चीजें मैं ये जरूर जवाब दूंगा कामरान साहब, लेकिन मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है। आज से कुछ वक्त पहले आपने अपने चैनल के ऊपर आके एक बीपर के जरिए ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई मीटिंग नहीं हुई और उन्होंने ब्लफ किया है, और बल्कि उन्होंने नाम काट के जो जनरल रहील शरीफ है और अपना नाम डाल दिया कि ये उन्होंने मीटिंग की है 4 घंटे। और आपने फिर मजीद कहा कि कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट की या प्राइम मिनिस्टर की कि इतने बड़े झूठ के बाद वो मजीद ऑफिस में रहें। और फिर आपने ये भी कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि उसके ऊपर कोई मेरे साथ आके बात करे। तो मेरा सवाल आपसे ये कामरान साहब कि आपको जब चाबी दी जाती है तो आप कुछ सोचते भी हैं बोलने से पहले, या चाबी तो दानिया साहब आप लेते रहे कई साल तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के, चाबी मुझे क्या मिलनी है? जी। और आपके आने से पहले क्योंकि आप लेट आए, मेरी बात तो सुन लेना, लेकिन आपने मेरी बात तो सुन ले। हाँ मैं सुन रहा हूँ, पूरी बात सुने ना। आपके आने से पहले मैं माफी मांगे, आप माफी मांगे। आपके कहने में तो माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं तस्दीक कर चुका हूं। चैलेंज कबूल करता हूं, आप माफी मांगे। आपको चैलेंज कोई दे ही नहीं रहा। आप अपना चैलेंज ये कबूल करें कि आप गोद में बैठे हुए थे और अब आप नवाज शरीफ की गोद में आ गए। आप ये चैलेंज लेना, आप वो टेप चलाएं, बोलने पहले बोल चलाएं, बोलिए पूरा। आप में हिम्मत है तो टेप चलाएं। ओ भाई हिम्मत तो आप में नहीं है, तो टेप चलाएं। जो इख्तियार में तो गोद में आप बैठ जाते हो, कानों के दरमियान आप में हिम्मत नहीं है, वो भी इस्तेमाल कर लिया। पानी आप में नहीं है मेरे भाई, जिसके भाई ज्यादा से बैठते हैं आप। चलाएं टेप, हिम्मत है तो। अच्छा बोल लो पहले, चलाएं अगर हिम्मत है तो। दानियाल साहब जो चाबी लेके आए हैं ना पहले, आप पीछे से पहले वो पूरी कर लें। आप जब बोल रहे थे चाबी लगी हुई थी, चाबी पूरी कर लो ना पहले। क्या बोल रहे हैं? जब पूरी चाबी हो जाए उसके बाद बात के बारे में बात कर रहे थे। ओहो, शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? मुशर्रफ साहब बैठ के नमाज देखने को जाते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म आती है? सियासतदानों का आपको शर्म आती है? जब आपको शर्म नहीं आती तो किसी और को शर्म किस तरह आती है आपके आगे? आपको तो शर्म आती नहीं है। You should be ashamed of yourself. I make that statement? You have been with the dictator and for few pennies you are with the prime minister now. You should be ashamed of yourself. आपको तो आईने में शक्ल देखनी चाहिए अपनी, और उसके बाद शर्मिंदा होना चाहिए अपने आप पे, और शर्मिंदा होना चाहिए अपनी जात पे, अपनी शख्सियत पे, अपने कैरेक्टर पे,
अपनी पूरी हैसियत के ऊपर। समझते हैं आप लोग? और मैंने तो जैसे कर दी। क्या समझते हैं आपने कैसे हुकूमत के अंदर गए? आपको शर्म नहीं आती? बक देते हैं। आपको शर्म, तुम जब बकते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? आपकी क्या मॉरल अथॉरिटी जब है? हुकूमत की चाबी लेके बकते हो, पहले मुशर्रफ की चाबी लेके बकते हो, प्राइम मिनिस्टर के फिर बारे में नवाज बात शरीफ कर की रहे हैं। चाबी लेके बकते हो, आपको तो शर्म नहीं आती? के बारे में बात कर तो रहे हैं। शर्म नहीं आती? मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप माफी भाई मांगे। आपको तो शर्म नहीं आप आती? माफी मांगे। जब बोल रहे होते हो भूपू माफी बन के मांगे, मुझे मुशर्रफ बात का, मत अब करें। नवाज शरीफ का भूपू बन के बोल रहे हो। आप काबिल नहीं है मेरे भाई होने के। तुम्हें तो काबिलियों के प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है। तुम्हें तो वैसे उठ जाना चाहिए प्रोग्राम से। हम जानते हैं काबिल ही नहीं हो। तुम लोटा हो भाई, आप लोटा हो, जिम्मेदारियों का बगैर एहसास होता पेंदे है के कि लोटा मुल्क हो। इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है और ये सियासत आप की बातें बगैर कर रहे हैं। पेंदे के एक लोटा है। हु आर यू टू आस्क मी एंड टू जज माय मॉरल क्रेडिबिलिटी? आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? पहले मुशर्रफ के गाने गाते रहे हो, अब नवाज शरीफ गाने गा रहे हो। नवाज शरीफ जैसे लोगों को बेवकूफ बनाया तुमने भाई। जहां से चाबी लेते हैं ना उनको चाबी तुम्हें मिलती रही है कई अरसा, कभी सोने की चाबी, कभी चांदी की चाबी, कभी डंडे की चाबी। बात करता है इस्टेब्लिशमेंट के फ्रंट के मोहरे रहे हो भाई तुम। ये तुम्हारी औकात और हैसियत है। किस कैनवस पे लिया जाना चाहिए? एक ब्रेक लूंगा व्यूज के लिए। ये सियासतदानों ने डिलीवर नहीं किया। ब्रेक से पहले जो कुछ भी हुआ, ऑब्वियसली मैं एक तो व्यूअर से बड़ा अपोलोजाइज करता हूँ, ये सब कुछ होना नहीं चाहिए था। दूसरा, दानियाल अजीज साहब जो हैं क्योंकि लेट आए, दानियाल साहब मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये तमाम चीज़ों की तस्दीक भी कर चुका हूँ और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से इस पर अपोलोजाइज भी कर चुका हूँ कि ये खबर जो थी वो बेसिकली गलत साबित हुई थी। उसकी तस्दीक तलाश चौधरी साहब ने कर दिया। आप क्योंकि लेट आए तो आप वो नहीं सुन सके, लेकिन मैंने दोबारा फॉर द रिकॉर्ड कह दिया। लेकिन व्यूअर्स के लिए पर्टिकुलरली जो कुछ हुआ पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में, वो मेरे लिए ज़्यादा जो है वो था फुल ऑफ कंसर्न, और उस पर व्यूअर्स से भी बड़ी अपॉलॉजी है। ऐसे होना नहीं चाहिए प्रोग्राम के अंदर। उससे अगर आगे मैं चलूँ, अगर हम चल सके, डॉक्टर जब्बार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो टेररिज्म का फिनोमेना है, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट से तो बाहर चला गया ना, मतलब किसी गवर्नमेंट को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते उसके अंदर। ये तो बाहर ब्रसल्स की गवर्नमेंट से लेकर पेरिस तक बेबस हो गए। प्राइम मिनिस्टर का खिताब है, व्यूअर्स चलते हैं वहां, उसको वापस आते हैं। इस प्राइम मिनिस्टर खिताब सुन रहे थे, उन्होंने यकजहती का इजहार किया लवाकिन के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी अब तक खत्म नहीं होती जब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन पंजाब में होने वाले ऑपरेशन की तरफ उनका कोई जिक्र नहीं था। अगर मैं चला जाऊं अली मोहम्मद खान साहब की तरफ, अगर वो सुन रहे थे, अली मोहम्मद खान साहब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंजाब में ऑपरेशन का जिक्र करेंगे प्राइम मिनिस्टर, जो उन्होंने नहीं किया? देखें कामरान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हाँ, शुक्रिया बहुत। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ये सानहा ऐसा है और ये वक्त ऐसा है कि हमारे देखें, झूलों पर खेलते हुए बच्चे शहीद हो गए, स्कूलों में पढ़ते हुए बच्चे शहीद हो गए, कॉलेजों में पढ़ते हुए बच्चे शहीद हो गए। मैं समझता हूँ बहुत घटिया इंसान होगा जिस पे सियासत करे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा, पहली बात तो ये है, मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म का इजहार किया है, हम बिल्कुल इस्लाम के साथ हैं। ठीक है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियां साहब आज ओपनली पंजाब में ऑपरेशन पे भी गुफ्तगू फरमाएंगे और इस्लामाबाद में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, उस पर भी कौम को एतमाद में लिया जाएगा। और साथ में मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जरा कौम को क्लियर एक डायरेक्शन देंगे। मैं समझता हूँ मियां साहब ने जरा थोड़ा सा मुबहिम सा उनका मुझे लगा है, उससे कोई डायरेक्शन जो कौम एक एक्सपेक्ट करती है अपने बड़े से या अपने लीडर से, वो मुझे होती हुई नजर नहीं आई। तो ये है कि थोड़ा वो क्लैरिटी का मुझे फुकदान नजर आया। अच्छा, आपको क्लैरिटी नजर नहीं? ठीक है, मैं जल्दी से आगे सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आप भी जरा अपना कमेंट दे दीजिए ताकि मैं एक बार ही पूछ लूं, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दानियाल अजीज साहब उनसे। जी सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आपका कमेंट स्पीच के ऊपर। देखिए कामरान साहब, बिल्कुल अली खान ने सही कहा कि आज ये मौका नहीं है कि सियासत की जाए, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि वो हमें पंजाब में जो ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है उस पर अपना टैग देंगे और ये बताएंगे कि हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल है, लेकिन उन्होंने उनका जिक्र तक नहीं किया। प्लस जो इनके स्पीच में जो एक चीज़ मिसिंग थी वो है भारतीय किरदार। जो हमारा रॉ का एजेंट पकड़ा गया भारत का, उसमें जो इंकशाफात किए हैं और उसके रद्द-ए-अमल में हम ये समझते हैं इस मामला हुआ है, लेकिन उन्होंने भारतीय किरदार का कहीं भी जिक्र नहीं किया। इवन कि उन्होंने ये तो कहा दहशतगर्दों के सरपरस्त, लेकिन जो दहशतगर्दों के सरपरस्त हैं मोदी साहब, जो आते हैं यहाँ पे और आके 2.5 घंटे गुजारते चले जाते, उनका कहीं तस्करा नहीं किया, भारतीय दहशतगर्दी का कहीं तस्करा नहीं किया। अगर वो कर देते तो कौम को बड़ा अच्छा लगता और कौम उनके साथ होती। बस मैं एक बात और बताऊं कामरान शाही साहब, कि वाहिद
कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई इस मुल्क के पाकिस्तान के लीडर हैं, जी। जिनका फौज के इस ऑपरेशन की हिमायत में बयान ठीक है आया जी, है, ये आपका तो शायद point आ आप गया तक जी। पहुंच गया हो। बिल्कुल ठीक है। बस मैं शाहिद साहब बस मैं एक शेर पढ़ दूं, जी, जी। मैं एक शेर पढ़ दूं मियां साहब के लिए, उनकी हुकूमत के लिए, कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ठीक है उतर जाओ यार, नहीं कर सकते तो। राइट। दानिया नज़ीर साहब कमेंट कर दीजिए, इंडिया की तरफ इशारा नहीं किया उन्होंने और डायरेक्शन लेस स्पीच थी आज की, कमेंट है ये ऑपोजिशन की तरफ से। जी, मेरे ख्याल में ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उन्होंने साफ साफ बताया जो हालात हैं, उसकी पूरा में ब्रीफिंग दी है, और जो आप जिस बात का इसरार दे रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी आपको जवाब मिल गया है। अगर ये स्पीच इस वक्त ना हुई होती तो मैंने खुद आपको ये बताना था कि अभी तक हमारे इल्म में, और मैं आपको तमाम ज़राए से बता रहा हूं कि किसी किस्म की ऐसी खबर नहीं है कि कोई नया ऑपरेशन पंजाब में किया जा रहा है। इसमें वाज़ेह तौर पर जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब के तहत बाकी चारों सूबों में चल रहा था, वो पंजाब में भी चल रहा था। उसमें लाख से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें जो फोरेंसिक अकाउंटिंग के जरिए अकाउंट्स बंद हुए हैं, उसमें लाउड स्पीकर सीज हुए हैं, लोग जो हेट स्पीच कर रहे थे उनका मटेरियल सीज हुआ है, प्रिंटिंग प्रेसेस बंद किए गए हैं, और ये तमाम पंजाब में ऑपरेशन चल रहा है। और इसमें JITs भी बनी हैं और वो प्रोसिक्यूट भी कर रही हैं इन चीजों को, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और बाकी तीनों सूबों के अगर आप रिजल्ट्स को देखें इन ऑपरेशन, इंक्लूडिंग कराची एंड सिंध, पंजाब अकेले के तीनों मिला के ज्यादा है। सो आई थिंक ये मैं फिगर्स लाया हूं, अगर आप चाहते हैं मैं आपके प्रोड्यूसर के पास छोड़ जाता हूं, आप बेशक अपनी खबरों में दिखा नहीं सकते दानिया हैं। साहब, आप ये कह रहे हैं कि लेकिन जो ये बाजवा तासुब साहब ने देना- आज ट्वीट्स किए हैं कि ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है सदर पंजाब वगैरह में, ये ऐलान नहीं कर रहा कि एक नया ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, आप कह रहे हैं पुराने की कंटिन्यूटी है। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस थे, जी। वो उसमें रेंजर्स मुलव्वस थी, उसमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स थी, उसमें एपेक्स कमेटी भी है पंजाब में, उनकी आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है, और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो मिलकर रेड्स भी करता है। कुछ जो हसास इलाके हैं उसमें वो आप भी खुद भी रेड्स करते हैं। ये सारा कुछ आज से नहीं, ये जब से ज़रब अज़ब शुरू हुआ है तब से चला आ अच्छा रहा है। दानिया साहब, जब मैं आपको से एक बात ABC हुई यहाँ थी, पे ऑल आपसे पार्टीज आपके साथ कॉन्फ्रेंस, बताता और ये चलूं कि फैसला ये हुआ। जो ऑपरेशन हो रहा है इसके अंदर आपका सिविल इदारा कोई शामिल नहीं है, आपकी एलीट फोर्स नहीं है पंजाब की, आपकी पुलिस नहीं है, ये टोटल मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन है पंजाब में। इसमें ऐसा है रेंजर्स हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज जरूर हैं, और इसमें ऐसा है कि जब भी माजी में भी जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या इस तरह का कोई बड़ा सान्या हुआ है, तो उसमें जो भी क्लूज मिलते हैं उसमें रैपिड रिस्पांस के लिए और फौरी एक्शन के लिए एक सख्ती की जाती है, जो आपको फैसलाबाद में, मुल्तान में और लाहौर में ये नजर आई है। और उसके मुताबिक ये जो बाकी मामूल थे SOPs के तहत, Right. ये भी हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये मैं एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में मीडिया को कि जो पिछले 8-10 माह से एक जानबूझ के मुख्तलिफ किस्म के, कभी नंदीपुर के हवाले से, कभी मेट्रो के हवाले से, कभी ऑरेंज लाइन के हवाले से एक देख गरमाई जा रही थी कि पंजाब में जो है बस हमला ही होने वाला है किसी एनिमी का, और अभी देखें जी क्या चाट मंगनी दे फट व्या, इनके साथ क्या होता है। तो अब वो सारी चीजें बार बार क्लियरिफाई हुई हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स आ गए हैं, ठीक सब है, क्लैरिटी मौजूद है। दानिया साहब, और आगे चूंकि आपका वो नहीं हो point। सका, बिल्कुल ठीक। अब वो नहीं हो सका तो मायूस नहीं होना चाहिए, और ये ऐसे मौके का जहां पर एक सान्या है, इसका नजायज फायदा मीडिया को बिल्कुल नहीं ठीक है जी, नजायज फायदा किसी को भी उठाना चाहिए ना। हम तो सिर्फ सवाल ये उठा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को पता भी था कि पता नहीं था कि जब रात को या सुबह को इतलात आ रही है कि ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया। सवाल सिर्फ ये उठा रहा है मीडिया, और सवाल ये उठा रहा है मीडिया कि ये जो मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन है इसके अंदर ना पंजाब के एलिट फोर्स को डाला गया, ना पुलिस को शामिल किया गया, ना IB को लिया गया, टोटल मिलिट्री रेंजर्स और ISI एक्सक्यूज मी, मैंने वजाहत कर दी है, और मैं समझता हूं कि ये गैर जिम्मेदाराना है कि आप सिविलियन और मिलिट्री साइड्स को एक दूसरे के खिलाफ पिच करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, मैं समझता हूं सबसे बड़ी ज्यादती और बिल्कुल ठीक है, आपके रजी की ज्यादती है, लेकिन ये मैं आपको हकायक बता रहा हूं, हो सकता है ज्यादती वाली बात हो। आपकी दोपहर की जब्बार खान साहब, आपकी दोपहर की जिसकी आप माफी मांग चुके हैं, दोपहर शाम की वो आप दोबारा कर रहे हैं। नहीं दानिया साहब, आप तो खैर माफी भी नहीं मांगते मेरे से, जाने दें, आपको उसमें वो होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होना जाने दें दानियाल साहब, आपने दानियाल साहब जाने दें। आई एम नॉट अ मौजू फॉर दिस नेशन। यार मौजू ये है कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है और मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हो। डॉक्टर जब्बार खान साहब, आपने माफी नहीं मांगनी, आपकी तो बड़ी वरना बहुत चीजों पर मांग सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये मौजू नहीं है आपका और मेरा इस वक्त। डॉक्टर जब्बार खान साहब, ये ऑपरेशन किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है, इसमें सिविल इनपुट नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत बहुत सारे इसके साथ चल रही है, उनके पास कोई और नहीं है, उनके पास गवर्नमेंट। जब्बार साहब, आपकी तो आवाज ही मुझ तक नहीं आ रही।
دوبارہ سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب, کمنگ بیک ٹو یو, یہ ایک کوآرڈینیٹڈ آپریشن ہے اور میڈیا کو یا کسی اور کو اس پہ ڈسٹنگوش نہیں کرنا چاہیے. بات تو بالکل اچھی ہے مورلی. وڈ یو ایگری ٹو دیٹ علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں, میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اب جس طرح کے حالات سے ہم گزرے ہیں, کل جو لاہور پاکستان کا دل ہے اور کل پاکستان کے دل سے خون رسا ہے, اور اس سے چند دن پہلے جو ہندوستانی جاسوس وہاں سے پکڑا گیا تھا, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس کا ذکر ہوگا. اور جس طرح سے میاں صاحب جب تشریف لے گئے تھے شری لنکا اور پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تھا اور میاں صاحب نے وہیں سے پھر نریندر مودی صاحب کو کال کی تھی, تو ہم ایک اور کال بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب سے کہ وہ جاسوس کے پکڑنے کے بعد اور خاص کر پاکستان کے دل پر اٹیک ہونے کے بعد وہ نریندر مودی سے سوال کریں گے, کیونکہ ایک سیکشن آف میڈیا سے یا کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ لاہور کا واقعہ اس دہشت گرد کے پکڑنے کا ریئیکشن. علی صاحب, میرے پاس وقت کی بڑی قلت ہو گئی, مجھے لوگوں سے اجازت لینی ہے. ویور جاتے آتے بس میں یہ کہوں گا, اسٹرینتھ آف کریکٹر یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک غلطی کریں اور اس کے اوپر ڈٹ جائیں یا آپ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں. اسٹرینتھ آف کریکٹر یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ غلطی کریں تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے آپ نے غلطی کی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کے جو دوسری کلاس کے لوگ ہیں, بے شک جرنلسٹ ہو یا خاص طور پولیٹیشنز, وہ بھی سب کچھ دکھائیں گے اپنا ٹیلنٹ اس قسم کی اسٹرینتھ کا بھی. کچھ تو دکھاتے ہیں لیکن کچھ نہیں دکھا پاتے. ٹائم از اے بیسٹ جج. کب ہوا, کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت.